Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's start today's topic. We are studying part 2 of our constitution, which deals with citizenship. The most important article in this part is only Article 11. Why only Article 11 is important? First of all, this. Constitution doesn't specify the provisions of acquiring and termination of Indian citizenship in the near future. Our constitution only deals with the provisions that these person A, B, C will be the citizen of India at the time of commencement of our constitution. वो इतना ही बोलता है कि अगर मैं आज के दिन इनेक्ट हो रहा हूँ 26 जैन 1950 को कमेंस हो रहा हूँ तो ये जो प्रोविजंस हैं ये जो सिटीजन इंडिविजुअल्स हैं इनको मैं अपना सिटीजन मानता हूँ. अंडरस्टूड. व्हाट आर दिस प्रोविजंस? ये हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ऐसे है. दोज हु आर रेजिडेंट्स इन इंडिया, दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पहले चले गए थे, दोज हु वेंट टू पाकिस्तान एंड देन migrated again to India. So these kind of individuals can acquire the Indian citizenship. Understood? So as constitution doesn't specify these provisions of acquiring and termination of citizenship, therefore our constitutional fathers has given this article 11 in our constitution. Now this article 11 says that parliament by law can make provisions for the acquiring and termination of citizenship of India in the near future or as and when the time requires. So using this particular article, our parliament has enacted Citizenship Amendment Act of 1955. Now this particular act, it has descriptive provisions that how to acquire citizenship. For acquiring, we have 5 ways. For termination, we have 3 ways. Okay. और ये जो टर्मिनेशन है इनमें से ये 3 वेज है ना, एक तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. दिस इज क्वाइट ट्रिकी. ठीक है. So our parliament has enacted the law Citizenship Amendment Act of 1955. एक रैंडम फैक्ट है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, अगर वो बाय बर्थ सिटीजन है यूएसए का, देन ओनली ही कैन एक्वायर द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट. वी विल स्टडी नाउ दैट इन दिस एक्वायरिंग प्रोविजंस which are 5 number. These are by birth, by descent, by way of acquiring the foreign territory, registration and naturalization. हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. तो these are the 5 facts: birth, descent, acquiring foreign territory, registration and by naturalization. So coming back to the comparison with the USA, if you are a naturalized citizen of USA, you can't acquire the office of US president. But in India, we have a liberal constitution. Our office of president is open to both the naturalized citizens as well as the citizen by birth. Understood? Now in this Citizenship Amendment Act, there are 2 principles involved. जस्ट सॉलिस एंड जस्ट सैंग्विन्स. इसका मतलब है बाई सॉइल, इसका मतलब है बाई ब्लड. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एक्ट प्रोवाइड्स 2 आइडियाज ऑफ एक्वायरिंग अ सिटीजनशिप. बाई सॉइल, इफ यू आर बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, then you will be considered citizens of India.
But if you are born outside India, but your father or mother or grandmother belongs to India, then also you can acquire citizenship of India. These are the meaning of by soil and by blood. Blood means parents ka, of course. Soil means if you are born on the soil of India. Understood? Now, what is the benefit? If you are a citizen of India, what are your benefits? If you are a citizen of USA, what are your benefits? So, if you are a citizen of any country, there are particular rights that are exclusively given for you. The word exclusive is very important here. अगर आप कोई जिम खाना या क्लब मेंबर हो, आपने कॉलेज में बहुत क्लब ज्वाइन किए होंगे ना, तो आप एक क्लब के मेंबर हो, सो देर आर सर्टेन सर्विसेज गिवन एक्सक्लूसिवली टू यू ओनली. अगर आप कोई स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हो तो क्या पता बॉलिंग एरिया आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो, है ना, 5 बजे के बाद कोई यूज़ नहीं कर सकता, बस आप यूज़ कर सकते हो. सो दीज राइट्स आर गिवन एक्सक्लूसिवली टू यू. सो इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, देर आर सर्टेन राइट्स विच आर गिवन एक्सक्लूसिवली टू यू. क्या सारी राइट्स एक्सक्लूसिव होंगी? नहीं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लिबरल इन दैट मैनर. Our fundamental rights are open to both citizen and non-citizen also. But there are certain rights because we are the citizen of India. Constitution provides us certain rights that are exclusive for Indian citizens only. What are these rights? Very important. Fundamental rights, Article 12 to 35. Okay. In that particular box, we have to remember these. These are exclusively given to only Indian citizens and not to foreigners or aliens. Understood? Alien हम वैसे जनरल टर्म में हमको लगता है कि बस ऊपर ही होता है. But if you are a foreigner in India, then you will be called as alien. Understood? Article 15, in that particular box of 12 to 35 which deal with part 3 of our fundamental rights. Article 15 हम सारी राइट्स एक एक करके बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखने वाले हैं, ओके, इन द नियर फ्यूचर. सो आर्टिकल 15 डील्स विद सम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सम काइंड. ओके. आर्टिकल 16 डील्स विद द पब्लिक अपॉर्चुनिटी. ओके, अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक ऑफिसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी. आर्टिकल 19 सबको पता है, आए दिन न्यूज़पेपर में भी आता रहता है और इससे सारे वाकिफ़ है, सारे लिबरल्स यही चिल्लाते रहते हैं आर्टिकल 19. सो इट इज़ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किससे डील करता है? इफ़ आई स्पीक ब्रॉडली माइनॉरिटीज से, बट देर आर सम टेक्निकल डिफरेंसेज ऑल्सो. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज. एक छोटा सा आर्टिकल और याद कर लो, 18 क्लॉज 2 ओनली, नॉट होल आर्टिकल 18 बट 18 क्लॉज 2. 18 क्लॉज 2 क्या बोलता है? इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कांट एक्वायर अ फॉरेन टाइटल गिवन बाय अ फॉरेन स्टेट. लाइक इन ब्रिटिश यू हैव बीन conferred with the title of sir if you have distinguished service to the state. So if you are a citizen of India in present and you want to acquire that particular title sir, and British government is also ready to give it to you, then also you can't acquire that particular title because our constitution denies it. Why? Right to equality है ना हमारे यहाँ, किसी को privileges नहीं है. Absence of privileges is called equality. उल्टा समझो, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इज कॉल्ड इक्वालिटी. सो इफ यू गिविंग एनी पर्टिकुलर टाइटल टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सो दैट इज काइंड ऑफ प्रिविलेज. अंडरस्टूड? सो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट वांट दिस. Understood? So it is prohibiting Indian citizens from acquiring any title from the foreign state. So 18 clause 2. Understood? So these rights are exclusive given to Indian citizens. Repeating, 15, 16, 19, 29, 30 in one memory box. याद करने में आसान रहता है.
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोलते भी साथ साथ में, एंड 18 clause 2. Understood? Now we will see the acquiring and termination of Indian citizenship under Citizenship Amendment Act of 1955 and not under Constitution, because in Constitution there is only Article 11 which confers power to the Parliament to legislate on the provisions of acquiring and termination of citizen. Okay, absorb this. So coming to citizenship acquirement by birth. The provisions has been tightened in the due course of the amendment of Citizenship Amendment Act of 1955. Understood? In the period between 26 Jan 1950 to 1 July 1987, if you are born in between this period on the soils of India, then doesn't matter if your mom or your dad is a citizen of India, you will be given the citizenship of India. Understood? So this is हम नहीं देखेंगे 26 जन 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक कि आपके माता पिता कौन से देश के सिटीजन हैं. ठीक है, अगर आप इफ़ यू आर बोर्न इन ऑन इंडियन सॉइल. अंडरस्टूड? 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 वी हैव मेड सर्टेन provisions, not made but amended certain provisions, that if you are born between this period on the soil of India and either of your parents is a citizen of India, then you are eligible for the Indian citizenship. It means मतलब आपके माँ बाप में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन है तो वी विल गिव यू इंडियन सिटीजनशिप बाय योर बर्थ प्रिंसिपल. ठीक है. इफ यू आर बोर्न बिटवीन 3 December 2004 टिल नाउ, सो सेम प्रोविजन या तो आपके माता या तो आपके पिता दोनों में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, प्लस एक और प्रोविजन ऐड कर दिया क्योंकि एट दैट पीरियड ऑफ टाइम देयर यूज्ड टू बी इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिजेस. अब आप बोलोगे ये क्या है कि भाई ब्रिटेन की औरत है और इंडिया का पतिदेव, ऐसे ऐसे शादी भी हो रही थी. और पर वो पतिदेव वो औरत कैसी है, वो इलीगल इमिग्रेंट है इंडिया में. अंडरस्टूड?
means she doesn't possesses certain documents which she needed to reside in India. वीज़ा कैंसिल हो गया या उनकी उसकी ड्यू डेट ख़त्म हो गई, these kind of provisions. So if you are born on Indian soils between 3 December 2004 से अभी तक till present तक, so either of your parents should be citizen of India, plus the other half or the better half of your parent should not be an illegal immigrant. Understood? So ग्राफ कैसा गया, टाइट होते गए प्रोविजंस. इसी का सेम उल्टा विपरीत राइट बर्थ बाय डिसेंट में. ओके 26 जैन 1950 से 10 दिसंबर 1992. आपको पता कौन सी डेट्स याद रखनी है? ये और एक ये बस. अंडरस्टूड? वैसे तो देर आर वेरी लेस चांसेस for this to be asked in UPSC because it is the most factual thing. इससे ज़्यादा कुछ फैक्चुअल हो ही नहीं सकता यूपीएससी के एग्जाम में, है ना, मतलब इन पॉलिटी सेक्शन. सो 4 डेट्स 26 जैन 1950 ये सबको याद है. क्यों? बिकॉज द कमेंसमेंट और द डे ऑन विच इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिपब्लिक 26 जैन 1950. 26 जैन कैसे याद रहेगा? एट द टाइम ऑफ पूर्ण स्वराज. ठीक है, लाहौर सेशन 1929 रावी नदी के पास. 1 जुलाई 1987 यू हैव टू रिमेंबर इट. 3 दिसंबर 2004 ये दोनों सेम है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे लास्ट 3 दिसंबर 2004 में हुआ था और वही हमें याद रखना है टिल प्रेजेंट. और एक ये अलग है 10 दिसंबर 1992, इससे और ये याद रख लेना. ठीक है, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक. तो ये 4 डेट्स याद रखनी चाहिए. कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डिसेंट. सबसे पहले है इफ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया. क्यों? क्योंकि डिसेंट से ले रहे हो. यहाँ बोर्न ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया, दिस इज बाय बर्थ, दिस इज बाय डिसेंट, मतलब बोर्न आउटसाइड इंडिया. अंडरस्टूड? ये की डिफरेंस है यहाँ. इफ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया इन द टाइम पीरियड ऑफ 26 जैन 1950 एंड 10 दिसंबर 1992 यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ योर फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. अंडरस्टूड? वेरी टाइट. ओनली फादर ही होना चाहिए, मदर नहीं. ठीक है, पेरेंट्स ने लिखा, यहाँ फादर लिखा है. यहाँ इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया, है ना. 1980s में वो फेमिनिस्ट मूवमेंट आ गई थी ना बहुत सारी. सोशोलॉजी में पढ़ते होगे आप, अगर आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो इसको इररेस्पेक्टिव बना दिया. इट मीन्स इफ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 10 दिसंबर 1992 एंड 3 दिसंबर 2004 यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ योर पेरेंट्स, ईदर ऑफ योर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. ठीक है, अगर बाय डिसेंट हुए तो पापा मम्मी, तो क्या होगा? तो उसके लिए थोड़े अलग प्रोविज़न है कि इंडियन कंसुलेट में जाके आपको 1 ईयर में जो बच्चे की बर्थ हुई है उसको लिखानी, रजिस्टर करानी पड़ेगी. ठीक है, तो वो भी प्रोविजंस है, बट जो मेन प्रोविज़न है वो आप यहाँ याद करिए. फादर बाय बर्थ इररेस्पेक्टिव बाय बर्थ, ये भूलना मत, बाय बर्थ है. ठीक है, एक आउटसाइड इंडिया है, वाई? बिकॉज बाय डिसेंट पढ़ रहे हैं हम, ना कि बाय बर्थ पढ़ रहे हैं. और दूसरा फादर बाय बर्थ इररेस्पेक्टिव बाय बर्थ. ठीक है, जो हमारे पापा मम्मी है उनको बाय बर्थ दे हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड? द लास्ट इज इफ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 3 दिसंबर 2004 टिल नाउ, देन द सेम प्रोविजन जस्ट एज एनालॉगस टू दिस वन. ठीक है, बट यहाँ ये है तो इधर भी होना चाहिए. इररेस्पेक्टिव प्लस ऐसा होता था कि ये तो हम देने लग गए. ठीक है, यहाँ ठीक है, योर फादर और योर मदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, सो वी आर गिविंग यू इंडियन सिटीजनशिप. बट होता क्या था कि ये जो बच्चा था
ये तो मासूम है, इसको तो बोलना भी नहीं आता, इसको पता भी नहीं व्हाट आर कंट्रीज, व्हाट आर सिटीजनशिप, व्हाट आर बाउंड्रीज, है ना। तो क्या करते थे माता पिता, वो चाहते थे उनके बेटे को दोनों साइड से बेनिफिट्स मिले। एवरी पेरेंट वांट टू गिव हिज चाइल्ड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो अमेरिका का भी सिटीजन है, इंडिया में बताया नहीं गवर्नमेंट को, और लो भाई हम पेरेंट्स तो बाई बर्थ इंडियन सिटीजनशिप है, तो यू हैव टू गिव अवर चाइल्ड इंडियन सिटीजनशिप। तो इससे बेनिफिट क्या होता था? आई हैव टोल्ड यू द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप। इफ यू आर सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, सो यू विल बी गिवन सम एक्सक्लूसिव राइट्स, है ना। सो पेरेंट्स अपने बेटे का भला ही चाहेंगे। तो टू अवॉइड दिस एनोमली इन द प्रोविजंस, द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैज टू डिक्लेयर दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। लिखित में दीजिए, वी आर हैप्पी टू गिव यू इंडियन सिटीजनशिप। सो दीज आर काइंड ऑफ लूजनिंग, अंडरस्टूड। रिमेंबर क्या करना है? 26 जैन 1950, 1 जुलाई 1987, 3 दिसंबर 2004, 10 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 2004, अंडरस्टूड। वी हैव कवर्ड 2 सब टॉपिक्स। एक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन टेरिटरी, मैंने आपको आर्टिकल 2 में बताया था। कौन सा आर्टिकल 2 है? आर्टिकल 3 है या आर्टिकल 2 है? कंफ्यूज मत होना इसमें। आर्टिकल 2 डील्स विद द फॉरेन स्टेट, कि हमने इंडिया ने बच्चू भाई स्टेट को एक्वायर कर लिया है, एंड देन वी हैव टू बाइफरकेट और गिव बच्चू भाई अ पर्टिकुलर नेम, देन वी विल यूज आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 इज फॉर द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस और सेपरेशन, सेग्रीगेशन, नेम ऑफ चेंज, एरिया, बाउंड्री, अंडरस्टूड। सो हमने अगर कोई भी टेरिटरी एक्वायर करी है, इफ इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर्ड सम टेरिटरी ऑफ फॉरेन स्टेट इन द नियर फ्यूचर, तो उनके जो रेजिडेंट्स हैं, उस फॉरेन टेरिटरी के जो रेजिडेंट्स हैं, दे कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, अंडरस्टूड। उनको बोलेंगे रेजिडेंट्स को, वी विल गिव ऑप्शंस टू देम, ईदर यू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और यू कैन लीव दिस टेरिटरी बिकॉज दिस बिलोंग्स टू इंडिया ओनली, अंडरस्टूड। दिस इज द थर्ड रूल। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है? एंड अदर थिंग्स लाइक फॉरेनर मैरिड टू इंडियन, सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ, अंडरस्टूड। What is PIO and OCI? Person of Indian origin, okay, which is foreigner to India but its origin lies or belongs to India. Overseas citizens of India, it means it is a citizen of India, overseas citizen of India, but he has gone to overseas. क्यों गया है पता नहीं, जॉब से भी जा सकता है, किसी से भी कारण जा सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज it is citizen of India only, but it does not belong to India. His ancestors belong to India, person of Indian origin. तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वे PIO, OCI, फॉरेनर मैरिड टू इंडिया, इंडियन, एंड
कॉमनवेल्थ सिटीजन्स के लिए कुछ, है ना। तो उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है थोड़ा सा कुछ, दे हैव टू रिजाइड 12 ईयर्स इन इंडिया, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट के 1 साल, इन 12 साल में से लास्ट के 1 साल कंप्लीटली इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन। नेचुरलाइजेशन, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें यू हैव टू टेक ओथ, ओके, ओथ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप रेस्पेक्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब जो भी ओथ होती है वो करनी पड़ेगी। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर कोई कंट्री है जैसे अमेरिका है, अगर वो एक इंडियन को एज ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन डिक्लेयर नहीं कर सकता एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया भी पूरे अमेरिकन सिटीजन्स को नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? इट इज़ अ रेसिप्रोकेटिंग प्रोविजन। इफ ए कंट्री अलाउज इंडियन सिटीजन to become a citizen of their state by the ways of naturalization, so this particular provision will be reciprocated on the Indian soils. क्या होगा? The citizen of that particular country can acquire Indian citizenship by means of naturalization. Understood? इसके लिए चाहिए क्या? स्पेशल ग्राउंड, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए आपके, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इन सब में, तो आपको नेचुरलाइज सिटीजन डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा क्या है, आपके पास 8 स्केड्यूल की नॉलेज होनी चाहिए। 22 है ना, शायद से 22 ही 8 स्केड्यूल में, तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, है ना। अगर कुछ नहीं है तो भी आप बन सकते हो क्या? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नेगेट एनी ऑफ द प्रोविजंस इफ इट वांट्स टू, और क्या करेगी? आपको नेचुरलाइज्ड सिटीजन बना सकती है। ओके, सो दीज आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप इन इंडिया। नाउ वी विल प्रोसीड टू द टर्मिनेशन, जिनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है ना। कौन सी है वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में दी है? इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, देन its Indian citizenship will be terminated. Understood? और रेस्ट 2 क्या है अभी देखते हैं। तो दीज आर द 3 वेज। रिनंसिएशन मीन्स, जैसे बुद्धा ने रिनंसिएट किया था, है ना, उसके बाद उन्हें क्या मिला था? केवल ज्ञान मिला था ना। क्या मिला था बताइए ना आप। रिनंसिएशन मीन्स कि आपने वॉलंटरली छोड़ दी है इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। आप खुद ही गवर्नमेंट को बोल रहे हो that dear government, I am leaving this Indian citizenship voluntarily. तो इंडियन गवर्नमेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? सेकेंड इज टर्मिनेशन। अगर आपने वॉलंटरली एक्वायर की है दूसरे देश की सिटीजनशिप, तो योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी टर्मिनेटेड। देन डेप्रीवेशन, इट्स ईजी। अगर आपने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है एट द टाइम ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप, और आप एक अगर वॉर चल रहा है इंडिया का और आप एनिमी एनियल से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर सिटीजनशिप। अंडरस्टूड? और भी हैं, इफ़ यू कंटिन्यूसली रिसाइड आउटसाइड इंडिया 7 ईयर्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए 7 साल लगातार, इंडिया नहीं आए, सो यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर सिटीजनशिप। ओके, सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस।
अच्छा, एक लास्ट में जाते जाते छोटी सी बात, इसमें 2-3 और ऐड कर देना। राइट टू वोट आपके पास है, एमपी बनने का सपना बस इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा, है ना। ऐसे ही कुछ पब्लिक ऑफिसेज हैं विच आर रिजर्व्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स. A foreigner cannot acquire that particular offices. Understood? So aspirants, these are all the things related to our citizenship which included in part 2 of our Indian Constitution. So if you like this video, please share it with your friends and subscribe to I Have Academy YouTube channel. तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, जय हिंद.